Hello, viewers. Welcome to another fantastic edition of the Hillary Times. Our today's guest is a highly respected veteran with 36 years of service in the Indian Army. He has received many medals and awards for his outstanding service. After that, he has spent over 10 years working in the corporate world where he showed strong leadership and strategic skills. In addition to his professional career, he has dedicated almost 10 years to theater, television, and films, showcasing his talent in the arts. Today, he is the senior director of a well known NGO, continuing his lifelong commitment to serving and helping others. Let's welcome Brigadier HPS Bediji. Hello, sir. How are you? Hello, Ji. I'm fine. It's so nice to be with you, and Thank I'm you. very thankful for your time. Thank you, sir. Sir, my first question is you have achieved a lot of things in your life. So, my question is how easy or difficult was it to earn so much in your life? कैसे हुआ ये सब कुछ? ऐसा है कि I feel that all this happens first and foremost due to the divine blessings. And therefore, I feel that anything that I have been able to achieve, which I actually aimed for, somewhere, sometime, from some place, the divine power has given me the power and the strength to achieve it. And my basic aim in life has been to work with a purpose, with an aim, irrespective of any kind of challenges that there may be. Sir, as a commoner, we all think that army life is completely different. Okay. So, my question is how did you get into acting? You see, my acting passion or hobby goes from my school days. Mm-hmm. I have studied in a boarding school called the Punjab Public School, Nabha. And that time it used to be only a boys' school. And there used to be a lot of emphasis on theater, on games, extracurricular activities. And so therefore, we all boys, young boys, used to act in plays, we used to do dance, etc. And it is from that time, that is about sixth class onwards, that I was always fond of acting and I took part in the drama. सर कोई ऐसा थिएटर वर्क या टीवी वर्क या मूवी जो आपके लिए आज भी मेमोरेबल है, आपको बार बार याद करने का मन करता है? यू वुड लाइक टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद द व्यूअर्स? As far as I'll talk about the theater, जब मैं दिल्ली में posted था, and that is the time when I was a brigadier and I had another 2-3 years of service. So I got in touch with a group called Living Room Theatre, and it is through them that I started performing actual theatre, and we have performed in all important auditoriums and halls in Delhi, whether it is India Habitat Center, India International Center, Kamini ऑडिटोरियम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो थिएटर है, वहाँ हम सब ने, हमारे ग्रुप ने वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो एक उसमें खास जिसको मैं दोबारा दोबारा याद करता हूँ, वो है एक प्ले जिसका नाम है बादशाह रंगीला।
ये लास्ट मुगल एम्पायर के ऊपर है, और इसमें जो कि मैंने एक वजीर का रोल किया है, तो वो मुझे बहुत याद आता है। कमिंग ऑन टू मूवीज, मैंने 3 यूट्यूब मूवीज की हैं, और तीनों ही आई हैव डन ऑन द इश्यूज ऑफ पंजाब। द वन इज ऑन द डिस्ट्रेस्ड farmer and how his life has been. The second is on drugs, के भी कैसे जो हैं बच्चे ड्रग्स में जाके उनके पेरेंट्स कैसे खराब हो जाते हैं। और तीसरा जो कि अभी पिछले 5-10 साल में जो मसला है पंजाब में, दैट इज कॉल्ड दी NRI ब्राइड्स। यानी कि अभी तो थोड़ा लोग समझदार हो गए हैं, लेकिन आज से 5-6 साल पहले काफ़ी ये धंधा चला था, वेयर द पीपल फ्रॉम अब्रॉड यूज टू कम, मैरी गर्ल्स हियर, प्रॉमिस देम दैट दे विल टेक देम, बट लेफ्ट देम बिहाइंड। सो ये 3 सोशल कॉजेज के ऊपर मेरी 3 यूट्यूब मूवीज हैं। जो तो जी प्लीज कैरी ऑन सर। हाँ, जो है बिग मूवीज में मुझे 2 बारी मौका मिला है। एक तो मैंने मद्रास मद्रास कैफे में एक छोटा सा मिलिट्री का रोल किया है। जो बड़ा ब्रेक मुझे मिला वो था उड़ता पंजाब में। उसमें मैंने काफ़ी बड़ा रोल किया, और बहुत अच्छा रोल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप लोगों को पता होगा, आपके व्यूअर्स को भी पता होगा, कि कुछ पॉलिटिकल कारण की वजह से उसमें काफ़ी कटिंग की गई लास्ट मोमेंट पे। तो उसमें फिर आवाज़ तो मेरी है, लेकिन उनको लास्ट मोमेंट पे एज ए कैरेक्टर मुझे रिप्लेस करना पड़ा। तो उसका मुझे कई बार दुख भी बड़ा आता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि डायरेक्टर साहब ने मुझे खुद रिंग करके और बोला कि सर, हमें बड़ा अफसोस है कि हम ये आपका कोट काट रहे हैं रोल। लेकिन उन्होंने मुझे सबसे पहले, जब मूवी शुरू होती है तो उसमें उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया है। तो एक वो मेरी एक बड़ी अच्छी याददाश्त है। सर आप आर्मी से हैं, आर्मी मीन्स डिसिप्लिन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्मी। और Yes. टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में डिसिप्लिन अक्सर आप सुनते होंगे, टाइम लेट, लतीफी, ये सब। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? आपने बियर कैसे किया इन्हें? ऐसे है कि हालांकि आर्मी में सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन मानी जाती है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अडेप्टेबिलिटी। एक आर्मी मैन को अडेप्टेबल बहुत होना पड़ता है, जी। चाहे वो उसकी खाने की हो आदत हो, चाहे उसके रहन सहन की आदत हो, क्योंकि उसको हर मौके के ऊपर, हर सरकमस्टेंसेस में उसको एडेप्टेबल होना पड़ता है। कभी ठंड में सर्विस है, कभी गर्मी में जाना है, कभी रेगिस्तान में है, कभी जंगलों में है, कभी सी के ऊपर है। तो ये जो क्वालिटी होती है ना एक सोल्जर की, एडेप्टेबिलिटी, ये अगर किसी सोल्जर में स्ट्रांग हो तो वो किसी हालत में एडजस्ट कर सकता है। सो दूसरा होता है, व्हेन यू आर अ पैशन ड्रिवन फॉर अ सर्टेन थिंग, देन यू डू नॉट थिंक बैक, ओ जी मैं तो एक ब्रिगेडियर साहब हूँ, मेरा रैंक है, मैं क्यों इन बच्चों के साथ लेट हो गया, चलो मैं क्यों हुआ, वो जो शान बान है वो थोड़ी पीछे छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप अपना हॉबी कर रहे हैं, आप अपना एक पैशन फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ अपने आप को एडजस्ट कर। बहुत अच्छा सर, आपने एडाप्टेबिलिटी की बात की। जब आप आर्मी में थे, बाहर के लोगों से जब आपने लड़ाई लड़ी, वो कुछ हद तक आपको समझ में आता है, सबको आता है। लेकिन जब आप नॉर्मल लाइफ में आए आफ्टर रिटायरमेंट, और जो इनसाइडर्स थे, जो घर के अंदर के जो लोग थे, जो आपने डिसिप्लिन देखा, ए लॉट ऑफ लोकल इश्यूज, तो आपने उसको कैसे अडाप्ट किया? वो कितना इजी और डिफिकल्ट रहा? देखिए, ऐसे है कि आई क्वाइट अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी, वेदर इट इज योर ओन चिल्ड्रन, वेदर इट्स योर ओन वाइफ, योर ओन ब्रदर, फैमिली, सबके अपने अपने व्यूज हैं, हम्म। सबका अपना अपना ओपिनियन है, और सबके अपनी अपनी ग्रोइंग सर्कमस्टेंसेस हैं। तो यस, शुरू शुरू में लगता था कि भाई ये बात क्यों नहीं समझ रहे, क्यों ये मेरा नज़रिया इनको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये महसूस हुआ कि भाई इनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, इनकी अपनी थिंकिंग है, ये किसी और तरीके से, इन्होंने हमारी जैसी फौजी ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ, जब आपने जैसे पूछा कि बाहर आए फौज से, तो
कैसे आपने एडजस्ट किया। हम्म, जैसे मैंने बताया कि सबका अपना अपना ओपिनियन है, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, आपका भाई हो, दोस्त हो। तो ये रियलाइज किया कि ये लोग कोई फौजी ट्रेंड थोड़ा है जो कि मेरे नजरिए के मुताबिक चलेंगे। हम्म, इनकी अपनी आदतें हैं, इनका अपना व्यू है, इनका अपना सोच विचार है, इनकी अपनी रहन बहन है। तो जब वो समझ आया तो फिर ये महसूस हुआ कि इसको तो हमें एडजस्ट करने में ही बेटर है, नहीं तो कॉन्फ्रंट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले अडेप्टेबिलिटी की आदत थी और अडेप्ट किया तो फिर कामयाब रहे। very nice. Sir, each and everyone wants to know more and more about the Kargil war. आप उसके एक इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट रहे। आप लोगों के कारण हम सब आज भी सेफ हैं। तो उससे जुड़ी कोई यादगार बात हो जो आप बताना चाहें। ऐसा है, कारगिल वॉर का तो बड़ा लंबा किस्सा है, हम्म, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपके व्यूअर्स को के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में इतनी ताकत थी कि हम थोड़े पहले सेटबैक के अलावा या उसके बाद इंडियन आर्मी ने बड़ी तजुर्बे से और बड़ी जल्दी ही उस मौके को संभाला और दुश्मन को ऐसा लताड़ा कि आज तक उनको याद है। बाकी छोटी छोटी कहानियां तो बहुत हैं जो लोगों ने टीवी पे देखी, ये देखी, लेकिन एक फौज एज ए एंटिटी होते हुए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा रेसिलियंस है, बहुत ज़्यादा पावर है, और किसी भी एडवर्स सिचुएशन को संभालने की उनमें बड़ी बड़ी क्षमता है। और यही एक कारगिल वॉर की जीत का एक कारण है। सर, आजकल हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो आप ऐसा क्या कहेंगे, ऐसा क्या शेयर करेंगे जिससे ये सोशल मीडिया की जगह ये आर्मी की तरफ, देश की तरफ, सेना की तरफ ये इंक्लाइंड हो, इनका अटेंशन हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया एक ना कि बच्चों का, लेकिन हर एक एज ग्रुप का एक बड़ा बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम्म, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ज़्यादा लोग जो है नेगेटिव सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो एक मेरा तो व्यूअर्स को ये मैसेज है कि ये जो नेगेटिविटी है सोशल मीडिया में, उसको थोड़ा आप अवॉइड करें। बाकी यूथ को जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये नेगेटिव सोशल मीडिया, या जो वो समझते हैं कि बड़ा अच्छा है उनके लिए, तो उससे हटकर उनको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। और फौज, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल कैरियर है। और इसके लिए अगर आप मेडिकली फिट हैं तो मेरा मानना है कि हर बच्चे को पहला प्रेफरेंस इसको देना चाहिए। क्योंकि जो फक्र और जो इज्जत एक फौजी को अपने आप में महसूस होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है या उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये मेरा मैसेज है यूथ को कि इसको देखिए तो सही, आजमा के देखिए। आप देखेंगे कि आप किस बुलंदी पे पहुंच सकते हैं और किस प्रकार आपका जो स्तर है वो आपके अपने मन में, आपके दोस्तों के मन में और आपके फैमिली के मन में कितना ऊंचा होगा। नाइस। सर, आप एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। तो ये, सर, ये जो आपका फाउंडेशन है ये क्या है, कैसे काम करता है, इसमें आपका क्या रोल है? तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। ये जो एनजीओ है इसका नाम सतविक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम्म, हम तीन इसके फाउंडर हैं, चंडीगढ़ में ही बेस्ड है हमारा इसमें। तो इसके अंदर हम गरीब बच्चों को, स्लम ड्वेलर्स के जो बच्चे हैं, ये हमने कोविड के टाइम शुरू किया था। और उस टाइम हमने इन बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की इनके पास तो फैसिलिटी नहीं होती थी, तो फिर हम इनको एक इकट्ठा करके इनको कंप्यूटर ला के, मोबाइल ला के, तो इनको क्लासेस लगवाते थे। और उसके बाद इनका उस टाइम मिड डे मील भी ख़त्म हो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर इनको इनका खाना, इनकी न्यूट्रिशन, इसको हम सपोर्ट करते थे। इसके बाद जब कोविड ख़त्म हुआ, थोड़ी चीज़ें स्टेबलाइज हुई हैं,
तो फिर हम अभी हमारा फोकस जो 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं उनके ऊपर है। हम एक हमारा मेथोडोलॉजी है मीन्स एंड मेरिट। जो बच्चे जिनके पास मीन्स नहीं है लेकिन मेरिट है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम सपोर्ट करते हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि इस वक्त इस टाइम पे मेरे पास हमने 5 बच्चियां हमने अडॉप्ट की हुई हैं हमारी संस्था ने। हम्म। इनमें की अभी एक लॉयर बन जाएगी, अभी उसने फाइनल एग्जाम दे दिया है। एक ने बीएससी नर्सिंग करके प्रॉपर वो नर्स बन चुकी है। एक बीटेक कंप्यूटर्स कर रही है। और एक बच्चा जो है एनआईएफटी पंचकूला में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, वहाँ अपना 4th सेमेस्टर कर रही है। और 5वीं बच्ची जो है वो अपना नॉर्मल बीएससी कर रही है और उसको फार्मेसी करनी है। तो हम अपनी संस्था सतविकम चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच से ये हम दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है। तीसरा जो हम करते हैं, हम एक छोटी सी सतविकम पाठशाला जिसको कहते हैं वो हम रन करते हैं। मेरे मित्र हैं वो डेवलपर हैं, उन्होंने एक जगह दी है जिसमें कि हम वॉलंटियर टीचर्स को लेके शाम के टाइम जब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़ के आते हैं स्लम्स के, तो उनके लिए आफ्टर स्कूल क्लासेस चलाते हैं ताकि उनकी इंग्लिश इंप्रूव की जाए, उनके मैनर्स इंप्रूव की जाए, उनकी थोड़ी ग्रूमिंग की जाए। तो ये 3 या 4 घंटे का हम प्रोग्राम चलाते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को गिव बैक। और इसमें मेरे साथ मेरे मित्र हैं, मेरी फैमिली है, वो थोड़ा बहुत हर कोई कंट्रीब्यूशन कर देता है और हम उसी की वजह से इसको चला सकते हैं। सो नाइस। सर, आपने जब टीवी और फिल्मों में काम किया, तो ऐसे कौन से एक्टर और डायरेक्टर हैं जिनके साथ आपको काम करके बहुत अच्छा लगा, उनका एसोसिएशन आप आज भी याद करते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं तो मुझे तो मेन फिल्मों में तो दो का ही मौका मिला। तो एक में तो शाहिद कपूर थे। वो बड़ी, बट आपको पता है इतनी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है सेट्स पे, तो थोड़ी सी हेलो हेलो होती है। लेकिन एज ए वेटरन उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। और जो डायरेक्टर हैं उनके साथ तो इंटरेक्शन था ही, उनके साथ भी बड़ा अच्छा लगा। बाकी जो टीवी जो यूट्यूब मूवीज़ हैं वो तो मिस्टर सत्य प्रकाश हैं, वो उनका अपना चैनल पर टीवी है। तो उनके साथ मैंने काम किया है। और मज़ा तो इस बात का था कि उनको फिर मैंने दिल्ली से बुलाया कि आप पंजाब का कर रहे हो तो हम इधर ही करेंगे। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा अच्छा लगा। अपने दोस्त के फार्म हाउस पे रहे, सबको वहाँ किया, वहाँ हम शूटिंग की, वहीं खाया पिया। तो वो एक बड़ा ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और उसमें पिक्चर से ज़्यादा उसमें ज़्यादा मज़ा आया। नाइस। सर, आपको पॉलिटिक्स से ऑफर नहीं आया, या आपने कभी उधर जाने का नहीं सोचा? एक दो बारी एक आधे लोग ने कहा, लेकिन आई फेल्ट कि नहीं, आई डोंट थिंक सो इट इज़ माई फोरे। मुझे कुछ इंक्लिनेशन है नहीं। हम्म। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फ्रैंकली कोई इतना ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग कोई मैसेज ऐसा आया नहीं। हम्म। और फिर हमने सोचा कि मैं ये बाकी चीज़ें इतनी करता हूँ, तो फिर इन चीज़ों के लिए थोड़ा मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कभी दोबारा उसके बारे में सोचा नहीं। सर, जब हम आपका नाम लेते हैं ब्रिगेडियर HPS वैदी, तो आम बंदा, साधारण बंदा, या तो डर जाता है या बहुत प्राउड फील करता है। मैं भी आपसे बात करते हुए मुझे बहुत खुशी और प्राउड फील हो रहा है। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस ब्रिगेडियर साहब से घर में लोग कितना डरते हैं, बच्चे कितना मानते हैं, कितना मतलब आपकी बातों को मानते हैं? देखिए, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि जब मैं यंग ऑफिसर था, हम्म। तो मैं हमारे जो ब्रिगेडियर साहब थे उस टाइम कमांडर, वो जैसे आपने कहा बड़े सीनियर होते हैं एक सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। हम्म। तो एक दिन वो बैठे, हम शाम को हम सिक्किम में पोस्टेड थे, तो फैमिलीज तो होती नहीं है वहाँ। तो उनको टेलीफोन आया घर से, कोई ट्रंक कॉल वगैरह, शायद उनकी मैडम का था। तो उन्होंने कुछ बताया होगा। तो वो आके बोले, यार एक पैग और लगाओ। हम्म। तो उसने बोला, यार अच्छा सी लगा दिया। तो
साथ में कर्नल साहब बैठे थे, उन्होंने पूछा सर ऑल वेल, एंड इन पंजाबी ही सेड यार मैनू ब्रिगेड कमांड करनी औखी नहीं है जिन्ना कि मेरा पुत्र मैनू दसदा है। सो as far as the children are concerned, nobody is scared of you. Okay. They do their own things. But yes, there are certain values, there are certain, ethics that the children do pick up. And so therefore, they are comparatively slightly more disciplined than the civilian children, just because they happen to live in that environment. सर, हम जो फिल्मों में आप लोगों की लाइफ को हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है, तो कुछ खास तरीके की इमेज एक डेवलप होती है। एक तो लगता है कि कितना, मतलब वो है भी, सच भी है, मुश्किलों को दिखाया जाता है। थोड़ा सा फिल्म है तो ग्लैमराइज, ग्लोरीफाई करके उसको दिखाते हैं। जैसे हमने कुछ फिल्म, जैसे कि आपको बॉर्डर मूवी में हमने देखा, गदर में देखा। तो ये जो फिल्मों में हम दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हम जस्टिस फील्ड से जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये जो कोर्ट में आपको दिखाया जाता है फिल्मों में, ऑर्डर ऑर्डर हथौड़ा मारते हुए, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तो क्या जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो वाकई वैसा होता है या ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि स्पेशली जो दो पिक्चरों को आपने नाम लिया है, लक्ष्य और दूसरा बॉर्डर। बॉर्डर, ये काफी हद तक रियलिस्टिक सिनेरियो दिखाया गया है इसमें। देखिए फौज का ज्यादा काम रात को होता है, तो रात को फिल्मिंग और वो एक्शन दिखाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, एज यू नो इट एज अ टीवी प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर। सो लेकिन ग्लैमर करना भी जरूरी है, बिकॉज जब तक वो नहीं करेंगे तो फिर पिक्चर चलती नहीं है। टू मेक इट। लेकिन आई थिंक मैंने देखा है कि जो एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स हैं वो काफी बैलेंस मेंटेन करते हैं। मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मिलिट्री एडवाइजर भी हूँ पिक्चर्स के लिए। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनी है कॉल्ड द बैटल ऑफ ओपी हिल। वो मैंने पूरी पुंछ सेक्टर में जाके शूट करवाई है। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, और उसमें हमने बड़ा रियलिस्टिक एक कोशिश की है रियलिस्टिक पिक्चर देने की। इनफैक्ट हमने जितनी भी शूटिंग की है वो आधी हमने एक्चुअल रात को की थी, और वो एक मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो भी पिक्चर जो डायरेक्टर्स मिलिट्री ऑफिसर्स को अपने साथ थोड़ा लगाते हैं तो वो ज़्यादा रियलिज्म आ जाता है। बाकी मैंने कोई ऐसी पिक्चर नहीं देखी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो। हाँ, मजाक हंसी के लिए वो कर्नल साहब को थोड़ा जोक करते हुए, ये करते हुए, वो तो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और वो होना भी चाहिए। सर, आप लोगों के खाने पीने का रूटीन कैसा होता है? नॉर्मल देखिए, बंदा तो स्ट्रगल कर रहा है जंक फूड के नाम पे, तो हेल्दी फूड के नाम पर। आप लोगों का कैसा होता है जिससे हम सीखें, कॉमन मैन सीखे, अपने आप को वेल बैलेंस्ड करे, आप जैसे हमारी भी एंटाइसिंग पर्सनैलिटी हो? क्या करें इसके लिए? देखिए ऐसा है, हम भी जैसे बाकी लोग खाते हैं वैसे ही खाते हैं, लेकिन हम थोड़ा, हमारा रूटीन बड़ा सेट है। हमारा दिन जो है वो शुरू होता है पीटी के साथ सुबह। सो हम सुबह उठ के 6 बजे हम पीटी ग्राउंड पे सब पहुंच जाते हैं, चाहे वो अफसर हैं, जवान हैं, जेसीओज हैं, जो भी है। और उसके बाद पीटी करके अच्छा अपना व्यायाम करके फिर हम आके नहा धो के फिर हम ब्रेकफास्ट खाते हैं। तो नॉर्मल ब्रेकफास्ट जैसे कि आलू पूड़ी है, पराठा है, ये है, और ब्रेड अंडा है, ये सारे दलिया, ये जो नॉर्मल है। क्योंकि हम अच्छी कसरत करते हैं तो ये जो पराठा है, ये है, वो सब हमारे को पच जाता है। दैट इज नंबर वन। उसके बाद हमारा ऑफिस टाइम होता है या ट्रेनिंग टाइम होता है, जिसमें कि फिर हमारी फिजिकल ट्रेनिंग काफ़ी होती है। जो भी जवान हैं, जेसीओज हैं, अफसर हैं, हम सिर्फ किताबें या दफ्तर में बैठे कंप्यूटर के सामने नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो जैसे हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ वैसी ड्यूटी होती है, लेकिन 90% फौज की ड्यूटी फिजिकल एक्टिविटी के साथ है। और उसकी वजह से फिर भूख लगती है अच्छी, फिर लंच खाते हैं नॉर्मल, दही चावल, रायत अपना, मटर पनीर, मटन, जो भी जैसे हम नॉर्मल किसी भी घर में बनता है। और फिर शाम को दोपहर को आपको शायद पता नहीं है कि हम
फौजियों के लिए 1 घंटा आराम करना बड़ा जरूरी है। सुबह उठते हैं हम्म, और फिर फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं। हम्म, तो ये हमारा बड़ा एक प्यारा टाइम होता है, हम्म, जो कि जिसको आफ्टरनून सिएस्ता बोलते हैं। हम्म, उसके बाद हमारा फिर गेम्स का टाइम हो जाता है। हम्म, तो हम सब इकट्ठे मिलके गेम्स खेलते हैं। और गेम जब खेलते हैं तो कोई ऐसे सॉफ्ट गेम्स तो होती नहीं है। बास्केटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, हॉकी है, फुटबॉल है, तो एथलेटिक्स है। तो ये चीज़ें करके फिर हम शाम को नहा धो के फिर हम अपना नॉर्मल रूटीन हम्म, खाना, जैसे दाल चावल रोटी और सब्जी ये वगैरह खाते हैं। सो इट इज एज गुड एज एनीबडी एल्स, बट द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट वी आर एबल टू डाइजेस्ट हम्म। and make use of the food because of our physical activity. That is one reason why the Fauji's maintain a good health and a good personality. So nice. I do hope commoners will follow your lifestyle. Sir, a very, what we say, nice, a catchy nickname is associated with you, Cycle Baba. ये क्या है सर? ऐसा है कि जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था, हम्म, तो एज अ ब्रिगेडियर, हम्म, तो वहाँ मैं दिल्ली कैंट में मेरी मुलाकात हुई एक सज्जन से, जो कि साइकिलिंग लोगों को कराते थे। हम्म, वहाँ एक बड़ा मशहूर बाजार है, गोपीनाथ बाजार, कैंट में। तो उनके साथ मेरी एक दिन मुलाकात हो गई। तो बड़ा अच्छा सा फैंसी सा साइकिल था उनके पास। तो मैंने बोला, यार ये क्या है? कहते सर ये रेसिंग साइकिल है। तो मैं क्या, आप क्या इसको चलाते हो? कहता हाँ सर, चलाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ। तो मेरा उसमें रुझाव हुआ। मैं क्या, कैसे करते हो? कहते सर आप आ जाओ सुबह 5:30 बजे, आपको बताएंगे। तो मैंने जाके देखा, वहाँ तो 10-15 लोग बड़े बड़े ऐसे अच्छे साइकिल लेके बैठे थे। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि आप भी शामिल हो जाइए हमारे ग्रुप में, साइकिलिंग करिए। तो फिर ये 2008 की बात है। तो 2008 से फिर मैंने उनसे साइकिल के लेसन शुरू किए, ग्रुप के साथ साइकिलिंग की। और उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, फिर मैं दिल्ली में ही रहा, क्योंकि मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में चला गया था। तो फिर हमने उसको क्या किया कि मैंने वो कंटिन्यू रखा, उनके साथ जाना आना करना सारा कंटिन्यू रखा। जब कंटिन्यू रखा तो फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो गए चंडीगढ़ में। जब चंडीगढ़ में आए तो यहाँ भी फिर कुछ लोगों के साथ जो मैं जुड़ा था, तो उनको यंगस्टर्स थे, मिडिल एज, 50 साल, 35 साल, 20 साल। तो एक ग्रुप इधर बन गया जिसका नाम है साइकिलिंग ग्रुप दिल से, जो कि मैंने फाउंड किया। तो क्योंकि मैं सबसे छोटा था उस ग्रुप में, तो इसलिए मेरा नाम उन्होंने रख दिया साइकिल बाबा। I am the youngest of that group, हम्म, and the group ranges from 16 years old to 70. हम्म, So that is how they, जब उन्होंने अपना वो हमारा ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम का, और उसमें तो उसमें मेरा नाम उन्होंने साइकिल बाबा रख दिया। very nice. और मैं अभी भी साइकिलिंग करता हूँ। हम्म, 30-40 किलोमीटर एवरेज हम कर लेते हैं। एवरी और डे। हाँ जी, अभी भी कर लेते हैं। हम्म, अभी तो मैं वीकेंड्स पे करता हूँ। हम्म, तो हम इधर ग्रुप के साथ हम कसौली भी साइकिल पे जा चुके हैं। हम्म, यहाँ एक मोरनी हिल्स है, वहाँ भी ऐसे टिम्बर ट्रेल तक, चंडीगढ़ के आसपास छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, हम्म, वहाँ हम रेगुलरली ग्रुप से, अभी भी मैं विद गॉड्स ग्रेस, वाहिगुरु की मेहर से, मैं 50, 60, 70 किलोमीटर आराम से कर लेता so nice सर। हूँ। हाँ जी। सर, सियाचिन ब्रिगेड से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सर जो आप बताना चाहें? हाँ। सियाचिन ब्रिगेड की सबसे स्टोरीज तो आपने, उस जगह के बारे में बहुत मुश्किल है। -53 डिग्री टेम्परेचर होता है, और क्रेविसेस हैं, बहुत ठंड है। वो तो आपने लोगों ने काफ़ी सुनी होंगी। हम्म, लेकिन मेरा सौभाग्य सबसे अच्छा ये था कि मेरे टाइम पे प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम ने विज़िट किया मेरी ब्रिगेड को, और मुझे उनके साथ बड़ा क्लोजली 4-5 घंटे इंटरेक्शन करने का मौका मिला।
और वो मेरे लिए एक बड़ा हाई पॉइंट इन लाइफ था। उसके बाद ऐश्वर्या राय जी भी मेरे टाइम पे ही वहाँ आई, वो जो एनडीटीवी का प्रोग्राम होता है, तो वो भी हमारे हेडक्वार्टर में रही। तो 2 दिन उनके साथ सारे ऑफिसर्स हम मेस में इधर उनके साथ इतना क्लोजली बातचीत करने का भी एक बड़ा अच्छा मौका मिला। तो मैं ये 2 बातों को हमेशा लोगों को बताता हूँ कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें थी जो मेरे साथ पर्सनली हुई, और जिसके लिए मैं वाकई मुझे अच्छा लगता है इसके बारे में बात करना। सर, आपको वैसे पर्सनली किस दिन ज्यादा खुशी हुई थी? जिस दिन डॉक्टर कलाम साहब आए थे, या जिस दिन ऐश्वर्या राय जी आई थी? डॉक्टर अब्दुल कलाम आए थे उस अच्छा, दिन। वाई सर? Why? Because that man is so different. ऑफ कोर्स। There is, I would say that having traveled here with him in the helicopter, then being with him, I told you ना 4 hours, ऐसे होता है कि सियाचिन ब्रिगेड में ब्रिगेड कमांडर ही उसको कंडक्ट करते हैं जो भी वीआईपी होता है। So I found something very, very divine about him. There is a different vibe that you get from a man like him. So, which gives a lot of positivity, which gives a lot of strength within yourself. तो इसलिए उनका आना और उनका विजिट ये ज्यादा अच्छा लगा। सर, जो कॉमनर्स हैं आज की डेट में, उनके पास एंटरटेनमेंट के नाम पे या तो सोशल मीडिया है। पहले के कुछ लोग थे तो वो रेडियो टीवी भी देखते थे, अब तो सारे लोग सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह देखते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, हाउ डू यू एंटरटेन योरसेल्फ? आप क्या कैसे करते हैं? अरे सर, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है हम्म। ये सब कुछ देखने के लिए। हम्म। मेरा तो रूटीन ये है कि मैं सुबह इसको बताया कि या तो मैं साइकिलिंग पे निकल जाता हूँ हम्म। 4:30-5 बजे, नहीं तो हम गोल्फ खेलते हैं, हम्म। तो गोल्फ के लिए चले जाते हैं। हम्म। तो अपना 8-8:30 बजे वापस आते हैं, आके थोड़ी अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह की, उसके बाद ब्रेकफास्ट खा के फिर अपना कोई एनजीओ का काम है, या मैंने एक नई गेम अभी शुरू की है पिकल बॉल, हम्म। उसके बारे में मेरा इनिशिएटिव है, तो उसमें किसी को मिलना, स्कूल में ये करना, कोचेस के साथ बात करनी, ये करते करते दिन निकल जाता है। और जब शाम होती है तो फिर इतने थके होते हैं कि भी आराम से सो जाते हैं। एज इट इज़ मैं तो जल्दी 7:30-8 बजे खाना खा लेता हूँ, हम्म। एंड ये जो 9 o'clock न्यूज़ होती है ये सुनते सुनते मैं तो सो जाता हूँ, बिकॉज मैंने तो 4:30-4 बजे उठना होता है सुबह। तो मुझे तो आई डोंट फाइंड एनी बोरियत और एनी काइंड, आई एम सो engrossed with all these activities, and that is why probably I don't even have time to see the negative social media. और मेरा यही एक मैसेज है सब बच्चों को, सब और एज ग्रुप के, कि भी देर इज एवरीथिंग दैट यू डू, इवन इवन प्लांटिंग योर सॉरी इवन watering your own plants is an activity हम्म। which is very very good, very therapeutic, and therefore हमें किसी प्रकार की एक्टिविटी या काम की कमी नहीं है, लेकिन हम देखते नहीं हैं उस काम को। ये अगर हम वो करें तो हमारे पास टाइम बड़ा यूजफुली एम्प्लॉय हो सकता है, ये मेरा मानना है। सो नाइस सर। तो सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि मुझे वाकई और व्यूवर्स को भी खुशी के साथ साथ गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। व्यूवर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड उनके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि इस इंटरव्यू के थ्रू आपको देखेंगे, सुनेंगे, आपसे सीखेंगे। और प्लस जो कमिंग जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो भी मैं चाहूंगा कि आपको फॉलो करे और डू समथिंग टुवर्ड्स आवर ग्रेट नेशन। थैंक यू सर। जय आई हिंद। वांट टू आई वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू। एंड फाइनली मेरा एक ही मैसेज है, जैसे गीता में लिखा गया है कि वर्क हार्ड एंड डोंट लुक एट द रिवॉर्ड, इट विल कम व्हेन इट हैज टू कम। थैंक यू। थैंक जय यू। हिंद। जय हिंद।